Namaste dosto, welcome to my channel. In today's video, we will be talking about investment of mutual fund through direct plan. And in this video, we will talk about what are the benefits of investing in mutual fund through direct plan and how can someone choose a direct plan. What are the modes through which they can choose for a direct plan investment in mutual fund. So to start with it, the first option, the first benefit we would talk about why there is a requirement when from so many years mutual fund investment people are doing through a regular plan. Why is there such a requirement to invest in direct plan and what are the benefits? When you invest in any mutual fund through direct plan, the top three benefits which you get are that your expense ratio for the investment for your mutual fund gets reduced drastically. And because the expense ratio is decreased, your return towards a mutual fund increases over a period. And thirdly, you get a higher NAV for your units. There is a very famous quote by Warren Buffett who says that the three most important words in investing are margin of safety. So now it's time that we have got the option of investing through direct plans. Now the time has come that you compare your mutual fund return through regular plan and then see if you switch to direct plan or you start with a direct plan, what are the added benefit you will get from switching from a regular plan to a direct plan. And I will show you a small sneak peek of the benefit, which on a number wise you can see. On my screen, if you see, I have just taken a comparison. You can take the comparison for any mutual fund you wish to. These are the name of mutual fund schemes, and this is the expense ratio. This is the expense ratio for regular plan, and this is the expense ratio for direct plan. And these are the expected higher return with direct funds. So if you have invested in ITI banking and financial service fund direct growth, in regular plan, your expense ratio would be 2.62%. Whereas if you invest through direct plan, the expense ratio is reduced drastically to only 0.32%, giving you a savings of 2.30%. So what does that mean? That means इसका मतलब ये है कि आपका खर्चा 2.30% से कम हो जाएगा. और अगर आपका खर्चा कम हो जाता है तो वो कहाँ जाके ऐड होगा? वो आपका रिटर्न में ऐड हो जाएगा, तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा. तो ओवर अ पीरियड जब आप रेगुलरली ये चीज करते रहेंगे और आप रेगुलरली आपका ये सेविंग्स होता रहेगा ईयर ऑन ईयर, तो आप एक ह्यूज अमाउंट सेव कर सकते हैं. एंड अगर आप ये देखें एक्सपेक्टेड हायर रिटर्न विद डायरेक्ट फंड 5 years में ऑन एन एवरेज 1,21,943 का रिटर्न है, 10 years में 2,62,685 का, एंड 20 years में 6,11,430 का आप से रिटर्न बना लेंगे अगर आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं तो. और ये एक एग्जाम्पल था. आप कोई भी फंड उठा सकते हैं, कोई भी कंपैरिजन अपने हिसाब से कर सकते हैं. गूगल पे जाके आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपको कंपेयर करना है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है आपको उसका कंपैरिजन करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं. एंड तो हमें ये समझ में आ गया है दैट डायरेक्ट प्लान में आपका बहुत सेविंग्स होगा एंड आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा. अब चलिए ये बात करते हैं कि अगर मुझे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक है ऑनलाइन मोड और एक है ऑफलाइन मोड. ऑनलाइन मोड मतलब ऑनलाइन मोड में आप जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी है, कुछ डिजिटल चैनल्स है और कुछ बैंक्स हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है थ्रू डायरेक्ट प्लान.
तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा थ्रू डायरेक्ट प्लान होगा, रेगुलर प्लान में नहीं होगा। और वेबसाइट में जब आप वेबसाइट के थ्रू जब आप ये करना चाहेंगे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन उसमें कंप्लीट करना होगा। जब आप उसमें एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको अपना केवाईसी सबमिट करना होगा। जब वो अप्रूव हो जाएगा तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट प्लान। एंड म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो होती है वो एक सिंगल विंडो होती है जहां पे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देर आर अदर वेरियस डिजिटल चैनल्स लाइक some online portals which are run by some private agencies. So you can also opt for those agencies. However, there would be some transaction fees or annual fees attached to their services. Again, there are various banks which are providing these services as well. So if you want to do it sitting at home, अगर आपको घर बैठे बैठे ये ऑप्शन यूज करना है तो आप ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर आप टेक सेवी नहीं है या आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते और आपको लगता है कि ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ हो सकती है और यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट ऑनलाइन, तो आप ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन में जैसे एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, आप उनके पास जाके अपने फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एक चेक और या डिमांड ड्राफ्ट के साथ। उनको बता सकते हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है थ्रू डायरेक्ट प्लान, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वहां पे आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो जाएगा थ्रू डायरेक्ट प्लान। दूसरा जो आप ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं वो है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके द्वारा भी प्रोसेस सेम है कि आपको फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे पहले हम कोई भी बैंक में जाते थे अकाउंट खुलाने के लिए, तो हमें एक अकाउंट फॉर्म फिलअप करना है, हमारे डिटेल्स भरने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद अप्रूवल के बाद हमारा बैंक अकाउंट खुलता था। सिमिलरली यहाँ पे आप एएमसी या कोई भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास जाएंगे, उसके पास में फिजिकल फॉर्म में जो डेटा देंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अप्रूवल के बाद आपका अकाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और एक है विच इज कॉल्ड रोबो एडवाइजर। तो आप रोबो एडवाइजर के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है रोबो एडवाइजर, सो व्हाट इज रोबो एडवाइजर? रोबो से हमें समझ में आता है कि कुछ रोबोटिक जैसा होगा। सो हाँ दोस्तों, दिस इज समथिंग, दिस इज अ प्लेटफॉर्म रन बाय, इट इज ऑन अ ऑटो पायलट मोड विच इज नॉट इंटरवेन बाय एनी ह्यूमंस। मतलब ये ह्यूमन से नहीं चलता है, इसलिए इसमें थोड़ा खर्चा भी कम पड़ता है आपको इस माध्यम से अगर आप जाएंगे। और रोबो एडवाइजर जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बहुत बार ये होता है कि आप आपके सेंटिमेंट्स के हिसाब से वो डिसीजन नहीं ले पाए, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सर्विस प्लेटफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, एंड यू कैन चूज योर प्लान अकॉर्डिंगली। सो दोस्तों, ये कुछ कुछ ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर म्यूचुअल फंड। एंड if you are someone who is already doing investment in mutual fund for quite some time and now you want to switch to direct plan, you can go ahead since you have that knowledge and you have been doing it for a while now. So आपको कुछ आइडिया होगा कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से कंपैरिजन करना है, मुझे कैसे पता चलेगा किस में कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, किस में नहीं इन्वेस्ट करूं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं। तो अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है और आपको लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए होगी, मुझे शायद ब्रोकर की हेल्प चाहिए, तो मतलब आपको या तो अकाउंट खोलने के लिए हेल्प चाहिए या इन्वेस्टमेंट कैसे करूं उसके लिए हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन स्टिल स्टिक टू रेगुलर प्लान। सिर्फ उसमें जैसे हर सर्विस का एक चार्ज होता है, सो रेगुलर प्लान का भी जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो हमें हेल्प कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, and for the whole process, so they have a separate charge for that and we have to pay for that.
सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको एक क्लैरिटी मिली कि रेगुलर प्लान में क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड in today's world, since everything has gone digital, everything has become very smooth, so I'll request each and every one of you to go and start opting for direct plan, so that you can slowly save a small amount, contributing it to a huge amount. Thank you everyone for watching. Have a great day. Bye bye. Do like and subscribe my channel, and do comment that how did you feel about the video, and any upcoming topics if you have in your mind, do suggest me and I'll try to put it on my video in my next video, upcoming videos. Thank you so much.